Hey, welcome to all of you. And from the bottom of my heart, I'm thankful for all of you for joining this workshop. Friends, my name is Bhupendra and I have more than 20 years of experience of weight loss and fitness. Friends, before we meet, I want you to give you a tool to lose your weight with the help of managing your life. So, friends, as you have already gone through from the course and you have already learned that why your metabolism is slow and why it is a temporary condition. If you still haven't completed my course, then my request to all of you that before we meet into our workshop, then you should complete my course if you are serious about your weight loss. Friends, now let's talk about that. What is the next thing which you need to do after finishing of your course? I still remember that when I used to be 110 kg on that time, I used to believe that only workout and diets is the answer which I have to manage. If you are looking forward for a permanent solution of your weight loss, then you need to work on the four aspects of your life. The number one is physiology, that you need to learn the art of workouts and dieting. You need to learn about the social personality development. It is aspect number 2. सोशल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है कि आप सोशली तौर पे ऐसा क्या दबाव आप पे पड़ता है कि आपको अपनी डाइट तोड़नी पड़ जाती है, तो सोशली तौर पे आपको अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने पे काम करना पड़ेगा. द थर्ड एस्पेक्ट वेयर यू नीड टू वर्क, दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी. फ्रेंड्स, जब भी कभी कोई व्यक्ति मोटा होता है तो उसकी सेल्फ इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है. कई लोग सिर्फ अपने पेट की चर्बी को देख के ये सोचते हैं कि वो बहुत मोटे हैं, जबकि कोई भी व्यक्ति जो है किसी की पेट की चर्बी को गौर से नहीं देखता है, वो सामने वाले को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है. बट हमारी खुद की कुछ ऐसे बिलीव्स और फिलॉसफी अपने ही शरीर के बारे में होती है जिस वजह से हम परेशान और डिप्रेस रहते हैं. सो आपको अपने शरीर से प्यार करना सीखना पड़ेगा और आपको अपने शरीर की रेस्पेक्ट करनी सीखनी पड़ेगी. एंड द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ द permanent weight loss solution is this, that you need to work on your spirituality part. Those people who are working on these four aspects, they are among those people who has attained a permanent fitness solution into their life. In my 90 minutes of workshop, I'm not going to talk about that what kind of a medicine you need to take and how to lose 7 kg of weight in 7 days. If you are thinking like this, then I'm not the right person. But those people who are looking forward for some permanent solution of their weight loss, then I have answers for you in this 90 minutes of workshop. Okay, so how to do the workouts and how to do the diets so that you can make a big change into your lifestyle and you can have a permanent solution of your weight loss. This is what I will be talking about. Of course, there are so many things which you're gonna learn, but the main thing which you're gonna learn about the 3 secret of weight loss and how to reset your metabolism. Okay, so now if we talk about that, what is the main cause of your weight gain in this 21st century, the answer is stress. Those people who are overweight, they are also in stress, and those people who knows the art of managing their stress, they are those people who are fit also, isn't it? So कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अगर हमको ऑफिस के लिए लेट हो रही होती है तो शायद तक हम लोगों स्ट्रेस में आ जाते हैं कि क्या करना चाहिए. सो इसी वजह से जो हमारी स्ट्रेस सिचुएशंस है, इसका एक बहुत बड़ी वजह है हमारे मोटापे के लिए. एंड द आंसर इज ऑल्सो लाइज हियर. द आंसर इज मेडिटेशन. For those people who are very much serious about their weight loss, my suggestion to you that apply this meditation which I have learned from Art of Living. I'm a student of Art of Living and I have learned so many meditation from them, and it was also a life-changing milestone for me also. So what I have brought to you, I have brought to you a simple meditation what you need to do. So how to do the meditation? First of all, you need to know this thing. So if you are looking forward for the meditation, you just need to be relaxed
एंड योर मेन प्रायोरिटी इज रिलैक्स, नॉट द परफेक्शन। आपको परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली तौर पे आप यहाँ पे जो आपके हाथ हैं वो कैसे रहेंगे, आपके हाथ एकदम घुटनों के ऊपर रहेंगे, आपके यहाँ पर। ओके, सो ये आपके हाथ हैं, आपके हाथ आपने घुटनों पे एकदम खुला रखा हुआ है। अब आप चाहें तो चौकड़ी स्टाइल में बैठे हुए हैं, या तो फिर आप चाहें तो नॉर्मली कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी गोना स्टार्ट आवर मेडिटेशन। डू दिस मेडिटेशन आफ्टर टेकिंग ए बाथ इन मॉर्निंग और इन द इवनिंग के अंदर भी अपने ऑफिस से आने के बाद में आप ये मेडिटेशन कीजिएगा। डेफिनेटली यू विल सी सम पॉजिटिव रिजल्ट्स इनटू योर लाइफ। Okay, so let's start. Now my voice is going to give you guidance towards this meditation. In this meditation, we are going to go deep inside of ourselves. हम अंतर्मुखी होने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, भूतकाल और भविष्य दोनों ही हमारी कल्पना में है, मगर सत्य हमारा वर्तमान में है। कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस में होने की बहुत बड़ी वजह है कि हम अपने जीवन का ज़्यादा समय या तो भूतकाल में या भविष्य काल में बिताते हैं। मैं आपको इन 5 आयाम में लेकर जाऊंगा जहां पर वर्तमान स्थित है। जो पहला आयाम होगा वो हमारी सांसें हैं। जो दूसरा आयाम है वो हमारा शरीर है। हमारे शरीर में कोई ना कोई गतिविधियां होती ही रहती हैं। जो तीसरा आयाम है वो है हमारा वातावरण। हमारे वातावरण में भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बस हम ध्यान नहीं लेकर जाते हैं। चौथा जो है वो हमारे विचार हैं। हम अपने विचारों के साथ में बह जाते हैं, इसी वजह से परेशानियां आती हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को वैसे ही देखें जैसे कि हम आसमान में सितारों को देखते हैं झिलमिलाते हुए, तो हम वर्तमान में ही अपने विचारों को महसूस कर रहे होते हैं। हमारे विचार 2 तरह के होते हैं। एक होता है कनेक्टेड विचार, एक होता है डिसकनेक्टेड विचार। कनेक्टेड विचार वो विचार है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके बाद क्या होगा, आपको घर पे खाना बनाना है, कहीं घूमने जाना है, कोई ऑफिस का काम है। एक विचार दूसरे विचार से कनेक्ट होकर एक चेन बनाता रहता है। वहीं पर ही आपको कोई अचानक से बगैर किसी बात के कोई बात याद आ जाती है, उसको डिसकनेक्टेड विचार बोलते हैं। अब विचार कनेक्ट है या डिसकनेक्टेड, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसको एक विटनेस के जैसे देखना है। 5वीं चीज़ है फीलिंग। हम हमेशा कुछ ना कुछ फील करते हैं। हमने एक समोसा खाया, हमको अच्छा महसूस हुआ, 1 घंटे बाद परेशानी हुई। उसी तरीके से अगर हमने कोई सलाद खाया, स्वाद खाने के अंदर हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमको बाद में 1 घंटे के बाद में तक हमें अच्छी फीलिंग्स हो रही हैं। सो हम कुछ ना कुछ महसूस करते हैं, और जब यही क्षमताएं हमारी बढ़ जाती हैं तब हमको अच्छे और बुरे के बारे में पता चल जाता है, जिसको विवेक बोला जाता है। ये मेडिटेशन आपको रिलैक्सेशन की स्टेज पे लेके जाएगा। शुरू करते हैं। एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। अगली बार 5 की गिनती तक सांसें अंदर लेंगे और 10 की गिनती तक छोड़ते रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, रोकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। फिर से एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। वातावरण में हो रही ध्वनियों के प्रति अपना ध्यान ले जाएं। जो भी ध्वनियां आपको सुनाई दे रही हैं, जो भी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, ट्रैफिक की, बच्चों की, फ्रिज की, पंखे की, जो भी आवाज़ें हैं उनके प्रति अपना ध्यान ले जाएं।
सभी ध्वनियों को स्वीकार कर लें। वातावरण के साथ में एक रूप हो जाएं। एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। हमारा शरीर प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अद्भुत उपहार है। अपने शरीर का आदर और सम्मान करें। अपने पैरों के पंजों के प्रति सजग हो जाएं। पैरों के प्रति अपना ध्यान ले जाएं। जननेंद्रियां, जेनिटल्स, एब्डोमेन, स्टोमक, चेस्ट, हैंड्स, फेस, हेड, पूरा शरीर। अगले कुछ समय के लिए अपने पूरे शरीर पे अपना ध्यान रखेंगे। एक गहरी सांस लें और छोड़ दें।
अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अच्छे विचार हो या बुरे विचार हो, उनके साथ एक रस हो जाएं। विचारों को रोके नहीं, उन्हें आने दें। अब हम अपने विचारों के साथ में एक रस हो गए हैं। एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। हम ही शांति हैं, हम ही आनंद हैं।
अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। शरीर में हो रहे स्पंदनों के प्रति अपना ध्यान ले जाएं। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आपके मन में जो भी भावना रही हो, जैसी भी हो, जो भी आपका मन हो, उन सब को लेट गो करके आराम करें। थैंक यू।